Very good afternoon, Meherpreet and Anjali. Okay, you haven't came offline today? Please switch on your webcams. Anjali and Meherpreet, am I audible to you? Yes. Okay, today most of your friends are offline. Good afternoon, ma'am. Okay, Aditya offline, Akshita offline. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Anjali online है. And Harshvardhan offline, Meherpreet. अच्छा, आपका नेम अभी तक इसमें हुआ नहीं है ऐड फिजिक्स में. आज आप मैम को बोलिएगा, ठीक है? अटेंडेंस के लिए ऐड नहीं. आपका नेम कार्तिक है ना? अभी तक ऐड नहीं किया गया है आपका. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. How are you? Fine, ma'am. How are you? I'm also good. Ma'am, you have started the class now, na? What? You have started the class 5 minutes ago, now? No, actually, the other ma'am started it. Oh, okay. Okay, so today is a physics class. How many Yes, of you ma'am. completed homework questions? Anyone Ma'am. of Done, ma'am. done LDA 1 and LDA 2 both done? Ma'am, LDA 1 full done, LDA 2 half done. Okay, LDA half done. Okay, any student having any doubt in LDA questions till now? No, ma'am. कौन सा डाउट रह गया आपका? LDA 1 से है? ठीक है, बोलिए. इसको एक कुछ शेयर कर दीजिए. Okay, right now we are taking one of our doubt from LDA 1. After that, we will be continuing with the topic. Okay? Yes, ma'am. Ma'am, tomorrow also you will be taking a physics class? No, tomorrow will be chemistry only because in this week we will be having one physics only, and that is on Wednesday. So that's why today I am taking your physics class. Okay, As we are lagging in next physics. Sunday, if you have any chemistry or physics class, please tell us on prior basis. As next week on Sunday, we will not be able to attend your class. Okay, fine. Surely I will be mentioning you from now onwards. Okay? Yeah, ma'am. A day Ma'am, prior, actually, I will be informing you that which class you will be having on the yeah. And ma'am, actually, na, me and Akshita are going to the Shimla and Kufri trip from the school, so we will not be able to attend the class from there. So that's why I'm saying. Okay, so for that you can go through online recordings. Yeah. If you will be having any doubts, you can ask me later. Yeah. Now we have okay, which question was that? LDA 1? बच्चा इसको क्लीन कर दीजिए ना एक बार. Question number 8, right? Enough. Okay. So now look at the question number 8. In question number 8, it is given a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. So that means we are having a square field. This is how a square used to look like. Okay, I have made a wrong diagram, but I guess you know that all the four sides are equal in square. So suppose this is how this is the square field looks like, and it is having 10-meter side. So each side would be 10 meter. The man is walking around the boundary, right? So in 40 seconds. So that means one round is completed in how much time period? 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds. So हमें find out करने हैं number of rounds. कब find out करने हैं? Number of rounds
after 2 minutes and 20 seconds. ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स सी ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा. एक राउंड में कितने मिनट्स लग रहे हैं? 40 सेकेंड. सो नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमें टोटल मिनट्स गिवन है उसको 40 सेकेंड से डिवाइड कर लेंगे. सो वी विल बी एबल टू गेट टू नो कि उसने कितना राउंड कवर अप किया है स्क्वायर फील्ड का, राइट. तो सबसे पहले हम ये जो टाइम पीरियड है 2 मिनट 20 सेकेंड, इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? सेकेंड्स में. सो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? 2 into 60 plus 20, because 20 ऑलरेडी सेकेंड में है इसलिए हमने उसको ऐड ऑन किया है. Now this is also in seconds, so 2 times 60 would be 120. It would be 120 plus 20, it would be total 140 seconds, right? So now we need to find out that how many rounds can be completed in total 140 seconds. So how we will be finding it out? Number of rounds in 140 second would be 140 divided by 40. So what we will be getting? 2 times 4, 740. So we are getting 3.5 rounds, right? So 3.5 rounds, that means 3 complete होगा. Suppose यहाँ से start कर रहे हैं, हमारा जो starting point है यहाँ से है. So 3 round complete and then half. So half में कितना cover up होगा हमारा? 10 plus 10 कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है, सिर्फ पूछा क्या गया है आपसे, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, बट हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं सेम क्वेश्चन. ठीक है, अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताइए? यस, एनीवन? अच्छा, जस्ट टेल मी हाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस. कैसे कैलकुलेट करेंगे? Okay, fine. Anjali, how we will be calculating the total distance covered in 3.5 rounds? ठीक है. See, distance covered in one round कितना होगा? Covered in one round is equivalent to what? 4 into side? Yes. Right? या फिर हम क्या कर सकते हैं? 4 टाइम्स साइड्स को प्लस कर सकते हैं. ठीक है, दो फॉर्मूले, या तो हम 4 से टाइम कर लें या फिर हम क्या करें, 10 को 4 टाइम ऐड Side of 4 plus side 4 4 plus 4 plus 4. So no one is absent. No one is absent. Harshvardhan is also absent. Yes sir. So it would be 4 into 10 meter. Actually मेरे को online की habit है and I thought online सिर्फ अंजलि और मैं free थे. Okay. So it would be 40 meter distance, right? Now see, we will not be writing it as meter square. Meter square क्या हो जाता है? एरिया. सो पे अटेंशन, यहाँ पे हमारा सिर्फ मीटर होने वाला है, ना कि मीटर स्क्वायर. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक. सो यहाँ पर कितने राउंड्स हुए? सो डिस्टेंस कवर्ड इन, Ma'am, we have found the distance covered in one round. या नाउ वी आर फाइंडिंग आउट टोटल कितने राउंड कंप्लीट किए हैं उसने? 3.5. 2.5 राउंड, राइट? Ma'am, we will multiply by this. Distance covered in we will be multiplying 3.5 rounds multiplied by distance covered in one round. 35, 5, 4, 2 times 0, 2, 4, 3, 12, 13, 14. Okay, 0.0 meter. So we can also write it as 140 meters. So total distance covered in 2 minutes and 20 seconds is 140 meter. Now, but in question they have asked about displacement. ये हमने क्यों डिस्कस किया? So that हो सकता है आपको अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ लिया जाए, then हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है, now we will be calculating asked in the question, that is displacement. डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. Final velocity. Just no, not velocity, position. So now tell me from this figure से बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इसका?
कौन सा होगा? Suppose this is point A, this is point B, C and D. Shortest distance क्या होगा? Ma'am, everybody it is equal. Everywhere it is equal. Everywhere it is equal, but shortest distance क्या? ये shortest distance है A to C. No. हाँ, so that is why यहाँ पे क्या हो जाएगा? Shortest distance ये होगा A to C. ठीक है? This is the shortest distance. हाफ मींस क्या है? हाफ राउंड मतलब A से C तक पहुंचेगा, राइट? तो A से C तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा यही बन रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? C 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है हमारा? यहाँ पर B पे, एंगल B पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर एंगल B 90 डिग्री है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों हो जाएंगे, राइट? सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इट। आई थिंक नाउ इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. So let's calculate AC. Just that means we need to calculate AC, and AC would be what? Under root of AB square plus BC square. So AB square, that means 10 square plus 10 square would be 100 plus 100, that is 200. Now what? This would be the total displacement. Is it clear? और वी कैन ऑल्सो राइट इट. हम इसको एक और क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 into 100 टाइम्स. बाय? बिकॉज हमें पता है कि 10 का जो रूट होता है, 100 जो होता है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है. सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 10 आउटसाइड एंड अंडर रूट 2 मीटर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बोथ दीज आर करेक्ट. ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है. अगर एमसीक्यू में गिवन है तो आपको देखना है ऑप्शन में इस तरीके से गिवन है या फिर इस तरीके से गिवन है. इज इट क्लियर? ओके. यस. Brightness need to be decreased. I think यहाँ की लाइट ऑफ करने से होगा. इसका भी कम करना है. This only. And what about light? Light कम नहीं करना. Fine. Now अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? बहुत ज्यादा ब्राइट दिख रहा है. डार्क फील नहीं हो रहा है. नाउ हाउ अभी वो लाइट अभी आपको और ज्यादा ब्राइट दिख रहा है. ब्लैक कलर नहीं दिख रहा आपको? Just a second, I don't know how to fix this setting. अभी अगर मैं ये डिक्रीज कर रही हूँ तो मेरी पीसी की डिक्रीज हो रही है लाइट. मैम एक काम करो, आप इसकी थीम चेंज कर दो. यू चेंज इट टू डार्क. अब एक बार करिश्मा मैम को बुला के ना. अच्छा करिश्मा मैम आ जाए. सीधे दूसरे मैम है ना, उनको बुला कर लगेगी. या फिर सर को बोलिए. सर को बताओ. सर को बोलिए. Okay, I think this doubt is clear. Any other doubt from the same LDA? No. From LDA 2? LDA 2 से कोई doubt है अभी तक? अच्छा, just do one thing. Just go through all the questions of LDA 2. फटाफट एक बार देख लीजिए. अगर कोई doubt है तो आप मुझसे पूछिए, so that next class में आपको doubt ना हो. Already हम लोग discuss कर चुके हैं ना ये topic. LDA 2 देखिए. आपके पास कोई बुक नहीं है? आप शेयर कर लीजिए. नहीं है दोनों के पास में? ये ले लीजिए. इसके थ्रू देखिए. ओके अंजलि एंड महरप्रीत, यू आल्सो गो थ्रू LDA 2. अगर आपको डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. सब बच्चों को स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक. प्रोजेक्ट क्या ये हो सकता है?
This a dark theme is available. और इसी में हो जाएगा वन नोट सी हो जाएगा पता है? Okay, he knows it. How much? How fine? आपको ये सर Thank you. Yes, Anjali and Meher, please just go through the questions of LDA1. Ma'am, you start with next topic. What? You start with next topic. Okay. Ma'am, I was having this one note. If you want that what Akshita was saying, you can go to these three dots with the options and go to light. Okay, right now sir has fixed it. Okay, okay, ma'am. अच्छा बातें नहीं, क्वेश्चंस देखो फटाफट, अदरवाइज हम ग्राफ डिस्कस करेंगे. लास्ट टाइम आई गेस एक्सेलरेशन का हमने ग्राफ नहीं डिस्कस किया था, वेलोसिटी टाइम का सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्कस किया था. मैम आपने किया था लास्ट टाइम. वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी सिर्फ डिस्कस किया था हमने, एक्सेलरेटेड मोशन का डिस्कस नहीं किया, दैट वाज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन. या आदित्य बातें नहीं करनी है, क्वेश्चंस देखो. आपको क्वेश्चन रीड करके समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. Anjali, are you going through questions? Yes or no? Questions देख रहे हो आप? Okay. Question number 9, third part. Okay, give me the book. Question number 9, third part. This is LDA 2. So in question number 9, it is written that what will you say about the motion of a body if its distance time graph is a straight line having a constant angle with the time axis. Okay. So first of all, that means we need to draw a distance time graph. Distance time graph बनाएंगे हम. This is distance, this is time. What will you say about the motion of a body if its distance time graph is a straight line having a constant angle with time axis? अच्छा, time axis के साथ में constant angle कैसे हो सकता है बताइए. Angle with time axis. देखिए, अगर हम ऐसे बनाएंगे, straight line बनानी है, अगर ऐसे बनाएंगे तो क्या ये time axis के साथ में कोई angle बना रहा है?
नहीं बना रहा ना? राइट नाउ इज इट मेकिंग एनी एंगल विद टाइम एक्सिस? ये तो डिस्टेंस एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये लाइन किसके साथ एंगल बना रही है यहाँ पर? डिस्टेंस के साथ में। सो दैट मीन्स क्या हम ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन? नो। ठीक है, हमें इसमें पूछा गया है कांस्टेंट एंगल विद टाइम एक्सिस। हमेशा कांस्टेंट मतलब सेम एंगल बन रहा है। तो अगर हम ऐसे बनाएंगे देन इज इट अ स्ट्रेट लाइन? ये भी स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, सेकेंडली क्या हम इसको ऐसे बना सकते हैं? ऐसे? क्या ये कांस्टेंट एंगल है? टाइम एक्सिस के साथ में एवरी टाइम क्या आ रहा है? 90 डिग्री। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है मोशन को? इज देयर एनी चेंज इन द टाइम पीरियड? मैम आपका माइक म्यूट है। ओके, सो इट इज सेइंग कांस्टेंट एंगल। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस हमारा हम दिखा रहे हैं ग्राफ के थ्रू दैट इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, बट टाइम हमारा सेम है 5 सेकेंड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपका टाइम सेम है और आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा हो? इज इट पॉसिबल? हो सकता है कभी भी? हाँ, ध्यान से सुनिएगा, टाइम 5 ही बज रहे हैं और मैं बोल रही हूँ कि मेरा डिस्टेंस चेंज होते जा रहा है। डिस्टेंस चेंज होते जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि टाइम चल रहा है। टाइम चलेगा तभी तो आप, अगर आप यहाँ से बाहर तक जा रहे हो दैट मीन्स थोड़ा तो कुछ तो टाइम लगेगा ना उस डिस्टेंस को कवर अप करने में। सो दैट मीन्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कौन सी सिचुएशन हो गई? ये जो हमने लाइन बनाई ये कौन सी सिचुएशन है कि टाइम स्टॉप हो गया है, और टाइम तो स्टॉप होता नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट एंगल भी है, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा हमारा? इसमें नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि टाइम हमारा कांस्टेंट है अगर, तो डिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो सकता है? डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम पीरियड तो चाहिएगा हमें, दैट वी लॉजिकली नोज। तो इस तरीके का ग्राफ हमारा नहीं बनेगा। इज इट क्लियर? यहाँ पे भी ये कांस्टेंट था। दूसरा कौन सा पॉसिबिलिटी है? अभी हमने एक और देखा था, से दिस वन। यस, व्हाट? कांस्टेंट मतलब क्या होता है? दिस नो? सो इज इट अ कांस्टेंट एंगल? नहीं है, एंगल कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं है? अच्छा सी, अगर आपको 30 डिग्री बनाना होता है, सपोज ये आपका प्रोटेक्टर होता है मैथ्स में, है ना, प्रोटेक्टर होता है। अगर आपकी जो लाइन ड्रॉ होती है वो सिर्फ इतनी सी होती है, तो भी क्या हम उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं? सपोज इतनी सी एंगल है, यहाँ पे हम 0 होता है हमारा, यहाँ पे 0 होता है, फिर यहाँ पे हमारा 30, सपोज यहाँ पे 10 आ गया, देन 20 एंगल, 30, 40, 50, दिस इज हाउ इट गोज ऑन, राइट? आप लोगों ने स्टार्टिंग में जूनियर क्लासेस में किया होगा, आपका लाइन सेगमेंट सिर्फ इतना सा होता था, ऐसा होता था, राइट? जैसे ये है, मैं इसी को यहाँ पे शो कर रही हूँ प्रोटेक्टर पे, ठीक है। यहाँ पे सपोज आपका ऐसे है, तो आप क्या करते थे? उस लाइन को एक्सटेंड कर देते थे, तो क्या वो एंगल चेंज हो जाता था? एंगल सेम रहता था ना, अगर 30 डिग्री है तो। अगर इतना सा भी है आपका, अगर इसको आप आगे और एक्सटेंड कर दोगे तो ये प्रोटेक्टर को कहाँ पे जाके टच करेगा? 30 डिग्री एंगल पे ही टच करेगा, राइट? तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर ऐसे भी ड्रॉ हो रहा है या फिर ऐसे ड्रॉ हो रहा है, तो एंगल तो कांस्टेंट ही रहने वाला, इजंट इट सो? Then this vertical line, you are saying that angle is constant in that case also. Why did you say that line? I said that is wrong. वो हमने रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। अकॉर्डिंग टू, जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि जो टाइम एक्सिस के साथ में एंगल है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी तो एंगल कांस्टेंट है। हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होते जाएगा, टाइम यहाँ पे टाइम नहीं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारा एंगल तो कांस्टेंट है 90 डिग्री, अगर हम इस लाइन को और ज्यादा एक्सटेंड कर दें। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर अगर 5 सेकंड है, ठीक है, सपोज 5 सेकंड टाइम पीरियड है, तो हम आगे नहीं जा रहे, हम 6 सेकंड पे जा नहीं रहे, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा? ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये वाला जो ग्राफ है हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एंगल कांस्टेंट है बट लॉजिक सेट नहीं हो रहा है डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर आप यहाँ से एक स्टेप भी लेते हो तो इट विल बी टेकिंग एटलीस्ट
इंक्रीज मिली सेकेंड, है ना. सो दैट मीन्स 5 सेकेंड से भी 5.0001 कुछ तो इंक्रीज होगा. तो इस वजह से ये हमारी उस कंडीशन में फिट नहीं हो रहा है जो लॉजिकल कंडीशन होती है हमारी. टेक्निकली इन्होंने जो बोला है उसमें तो फिट हो रहा है, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट लॉजिक लगाएं तो ये पॉसिबल नहीं है सिचुएशन. ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. इसीलिए हम इसका जो ग्राफ बनाएंगे वो किस तरीके से बनाएंगे, वी विल बी ड्राइंग इट लाइक दिस. क्योंकि यहाँ पर भी हमारा एंगल, लेट सपोज ये 30 डिग्री है तो ये थ्रू आउट 30 रहेगा. टाइम आपका इंक्रीज होते जा रहा है, डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड. सपोज यहाँ पे हमारा 5 सेकंड टाइम पीरियड था, ठीक है. तो 5 सेकंड पे आपका डिस्टेंस, सपोज ये ओरिजिन पे है तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका 0 था, राइट. अभी हम 10 सेकंड पे चेक करते हैं. सपोज दिस इज 10 सेकंड, ठीक है. 10 सेकंड पे अगर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें, वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन द वाई एक्सिस. यहाँ पे सपोज कुछ पोजीशन आएगी, सपोज यहाँ पे 5 आ रहा है एंड से दिस इज इन किलोमीटर्स. ये किलोमीटर में है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 10 सेकंड पर, 5 किलोमीटर्स, राइट. अगर हम एक और देखते हैं यहाँ पे, सपोज नेक्स्ट, सपोज यहाँ पर 15 सेकंड्स हो रहे हैं. तो अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें, राइट, एक्सटेंड करेंगे, वी वांट टू नो कि डिस्टेंस कितना है, 15 सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ. सो वी वुड बी सीइंग कि ये देखिए यहाँ पर हमारा डिस्टेंस सपोज यहाँ पे 10 हो गया. सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ कौन इंक्रीज होते जा रहा है, टाइम. अगर डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसके लिए टाइम इंक्रीज होगा फॉर श्योर. ऐसा हो नहीं सकता कि आपका डिस्टेंस इंक्रीज हो और जो टाइम हो वो सेम रहे, राइट. अगर आप इवन यू आर डूइंग मूवमेंट्स, इट विल बी इंक्लूडिंग सम इंक्रीमेंट ऑफ टाइम. टाइम लगेगा, आपको हाथ भी मूव करना है. यहाँ पर तो हम पोजीशन चेंज की बात कर रहे हैं. आपको समझ में आया क्यों हमारा वो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ गलत है. क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है. हमने इसको इस तरीके से नहीं बनाया, हमने इसको इस तरीके से नहीं बनाया. दिस इज आल्सो अ स्ट्रेट लाइन. सो आई गेस नाउ इट इज क्लियर व्हाई वी हैव ड्रॉन. सो आप लोगों को फिजिक्स में क्या होगा, काफी बार आपको चीज देखते ही आपको लगेगा बहुत इजी है, बट आपको करना क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से वेरी क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है. क्लियर. अभी जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये टाइम एक्सिस के साथ में तो एंगल बना ही नहीं रहा है, डिस्टेंस एक्सिस के साथ में बना रहा है. ये भी एक स्ट्रेट लाइन थी बट ये रॉन्ग था. क्लियर. This is right. How? It is. It has said it is making constant angle with time. क्या ये line? Yeah, according to a different situation, it is fine. ग्राफ तो हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है. लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें देखना है. यहाँ पे सिचुएशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, राइट. हमने जो पढ़ा है कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर रेस्ट, ये ना रेस्ट पोजीशन वाला ग्राफ हो जाएगा. डू यू रिमेंबर, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है लेकिन टाइम चेंज होते जा रहा है. जैसे अभी आप लोग रेस्ट पे हो बिकॉज टाइम तो 5 to 6 क्लॉक हो जाएगा, लेकिन आप यहीं पे बैठे हुए हो, राइट. तो इट इज लाइक दैट. तो ये सही है, लेकिन इस कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ बनाना होता है एवरी टाइम. इज इट क्लियर अंजलि एंड महरप्रीत? Yes, ma'am. Yeah, this one is only they are talking about what we have drawn at the very first. I hope it is clear. Okay, not an issue. Just a second. See, they are asking us that what is the type of motion. हमें motion भी बताना है इसमें, right? तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, किस टाइप का मोशन है. ऐसा स्ट्रेट लाइन कब होता है, हम लोगों ने ग्राफ में स्टडी किया था, यूनिफॉर्म मोशन. So that means this is the case of uniform motion. So body is under uniform motion. आई होप आप अगर दूसरे सब्जेक्ट की नॉलेज को थोड़ा सा इसके साथ में मिक्सअप करेंगे तो इजी हो जाएगा आपको समझना. जैसे हमने इसको 30 डिग्री एंगल मान लिया और हमने सोचा अगर हम इस लाइन को और एक्सटेंड करते जाएंगे तो भी वो एंगल कितना रहने वाला है, 30 डिग्री. तो इस तरीके से हमें इजीली समझ में आएगा. थोड़ा थोड़ा मैथ, जैसे अगर हम केमिस्ट्री भी सॉल्व करते हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये थोड़े से इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, है ना. तो आपको ध्यान लगाना कि यहाँ पे आप अपनी कौन सा जो नॉलेज है मैथ्स की यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए. क्लियर. ऑल्सो ओके, दिस इज ऑल्दो दिस इज रॉन्ग बट आई एम राइटिंग दिस इज द सिचुएशन ऑफ रेस्ट. ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल. ये हम रॉन्ग, हमें डिफरेंस समझ में आए कि अगर हमने ऐसा बनाया तो क्यों बनाया. क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1.
What is the nature of the distance time graphs for motion of an object? Already we have discussed. यूनिफॉर्म मोशन के लिए नेचर बताना है. Yeah. So for uniform motion, we can write. Okay. It's a straight line. And for non-uniform, it would be a what? It's a curved line. ठीक है, कर्व लाइन होती है. और उसमें भी हमने दो केसेस स्टडी किए थे. डू यू रिमेम्बर? अगर इस तरीके से है या फिर हमारा होगा इस तरीके से. ठीक है, इंक्रीजिंग कौन सा है? ये कौन सा होगा? इसमें स्पीड अप और स्पीड डिक्रीज. डू यू रिमेम्बर? व्हिच वन? This is distance, this is time axis. This is distance axis, this is time axis. For this, it would be like this. Distance time graph. Clear? यहाँ पर देखिए टाइम कम लग रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? बताइए कौन सा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? जस्ट अ सेकेंड. हो रहा है, टाइम भी दोनों में इंक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म में. बट आपको ये बताना है किसके अंदर स्पीड ज्यादा हो रही है इंक्रीज और किसमें कम हो रही है. ज्यादा कब होगी? स्पीड ज्यादा कब होगी? स्पीड मोर कब होती है? जब डिस्टेंस मोर कवर. क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो डिवाइड करने पे अपन को ओवरऑल वैल्यू ज्यादा मिलेगी. तो अगर स्पीड ज्यादा चाहिए तो मतलब कम टाइम में मोर डिस्टेंस कवर हो. डिस्टेंस मोर कवर्ड एंड टाइम क्या होगा? लेस कंज्यूम. ठीक है, तो अभी देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी वैसे तो ये डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर लेते हैं. ये फर्स्ट वाला है आपका और दिस इज सेकंड वन. फर्स्ट वाले में देखिए आप टाइम जो है ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर वाई एक्सिस के अलोंग अगर हम चेक करेंगे ये वैल्यूज ज्यादा इंक्रीज हो रही है या कम इंक्रीज हो रही है? कंपेयर कीजिए दूसरे वाले से. इसमें देखिए, इसमें अगर ऐसे बनाएंगे ज्यादा किसमें इंक्रीज हो रही है? यहाँ पर देखिए फर्स्ट में ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, सेकंड वाले में? अच्छा सेकंड में हो रहा है ना. देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है, ज्यादा ऊपर जा रहा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है. इसमें तो धीरे धीरे जा रहा है. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी गलत कर रहे हो. कैसे? सी जब ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है और ये हमारा टाइम एक्सिस था तो हमें क्लियर दिख रहा है कि टाइम तो ज्यादा बढ़ रहा है, ये थोड़ा 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 इंक्रीज हो रहा है, राइट? लेकिन उसमें ये सीधा स्टीप ग्राफ बन रहा है. तो यहाँ पे टाइम है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए थोड़े थोड़े टाइम पीरियड में कितना ज्यादा आ रहा है. यहाँ पर दिख रहा है ना क्लियर. इसमें देखिए थोड़ा सा टाइम पीरियड है लेकिन इसमें देखिए डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ आ रही है. फिर हमने जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज किया टाइम पीरियड और देखिए ये वैल्यू इतनी ऊपर आ गई, यहाँ पर आ गई, देन यहाँ आ गई. लेकिन इसमें देखिए इतने डिस्टेंस के अंदर हम सिर्फ यहीं तक पहुंच पाए जबकि उसमें यहाँ पहुंच गए थे, राइट? तो डिस्टेंस किसमें ज्यादा कवर हो रहा है? सेकंड वाले में. तो सेकंड वाला जो होगा ये स्पीड वाला होगा. स्पीड इंक्रीज हो रही है इसमें और ये वाला जो है इसमें स्पीड क्या हो रही है हमारी? डिक्रीजिंग. इज इट क्लियर? लेट्स डिस्कस वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम डिस्कस करते हैं. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो हमारा ग्राफ कैसे होगा? बताइए किसके पैरेलल होगा? वेलोसिटी एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस? बताइए. velocity is constant. Yeah, velocity is constant. Let's velocity and constant. Okay, I am writing again. I am writing VT ग्राफ हम डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट केस था हमारा फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म और वी कैन से कांस्टेंट वेलोसिटी. तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी. एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज. हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वेलोसिटी क्या है? सो यहाँ पर क्या हो गया? नो एक्सेलरेशन. ठीक है, ये एक्सेलरेशन का केस नहीं है बच्चा. ठीक है, अच्छा अभी इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताइए. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था. डू नॉट लुक एट द नोट्स. नोट्स पे मत देखो, हाथ से सोचो और फिर मुझे बताओ.
ओके, आई एम ड्राइंग द एक्सिस ऑल्सो, यहाँ पे मैं एक्सिस बना रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बताइएगा ये वेलोसिटी एक्सिस है एंड दिस इज टाइम एक्सिस। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए तो क्या चेंज हो रहा होगा इन दोनों में से? सिर्फ मैम स्पीड। बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा ग्राफ है? वीटी ग्राफ है, ठीक है। वी मतलब यहाँ पे हम इसको स्पीड टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, स्पीड टाइम से, बट हमारा एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे स्पीड टर्म को यूज ही नहीं करेंगे। मैं क्लियर? ठीक है मैम। ओके, सी सेकंड थिंग इज, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने बोला है वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस वेलोसिटी की वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी? सेम। वेलोसिटी की वैल्यू सेम आने का मतलब क्या होता है कि दूसरा जो एक्सिस है, दूसरा एक्सिस पे क्या शो हो रहा है? टाइम। तो वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी की वैल्यू सेम कब आनी चाहिए? जब क्या चेंज होते जा रहा है? टाइम। सो फॉर एग्जांपल जीरो टाइम पीरियड का है, जीरो टाइम पीरियड पे आप ऑलरेडी मोशन में थे, फॉर एजम्पशन सपोज ये आपकी स्पीड थी 10 एंड दिस इज इन मीटर पर सेकेंड, सो आपकी स्पीड, आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। अभी मैंने बोला आपको कि 5 सेकेंड बाद में हमने चेक किया, 5 सेकेंड बाद में अगर हमें 10 ही चाहिए तो हमारा कोऑर्डिनेट कहाँ पर आएगा? कहाँ आएगा बताइए? अगर 5 सेकेंड बाद में हमें जो हमारा डिस्टेंस वेलोसिटी है वो 10 ही चाहिए तो कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा बच्चा? यहाँ पर अगर हम, बच्चा ले लीजिए आप लोग, बाय, ओके। दूसरों को देख के हाँ ना नहीं करना, ठीक है, फाइन। हो सकता है दे डू नॉट लाइक इट, हो सकता है जो आपको पसंद हो उनको पसंद नहीं हो, दैट्स व्हाई दे आर डिनाइंग इट, ठीक है। खाने में शर्म नहीं करनी चाहिए, बाद में आप रिग्रेट करोगे, पी लेते तो अच्छा होता। ओके ओके, सो नाउ सी, यहाँ पर 5 सेकंड पे अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ऊपर ड्रॉ करेंगे और हमें वेलोसिटी कितना चाहिए एवरी टाइम? कांस्टेंट के लिए 10 ही चाहिए, तो 10 के लिए कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ आएगा, राइट। अभी फॉर सपोज अगर हम नेक्स्ट 10 सेकंड पे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, सिर्फ वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, तो इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, राइट। और हमें वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए, मतलब ये 10 पे ही आना चाहिए इसका कोऑर्डिनेट, सो दैट मींस दिस इज हाउ एवरी टाइम वेलोसिटी हमारी किस पे आएगी? इस पर आएगी। सो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट लर्न नहीं हो रहा है तो कॉन्सेप्ट वाइज करिए, खुद से सोच के करिए कि टाइम चेंज हो रहा है, टाइम चेंज करते जाएंगे, तो अगर हमारी ऐसे लाइन ड्रॉ हो रही है तो इवन यहाँ पर अगर 1 सेकंड भी है तो देखो टाइम तो हमारा इंक्रीज हो गया लेकिन वेलोसिटी हमारी इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इज इट क्लियर? ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन के लिए है, अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। आज हमें जो डिस्कस करना था दैट वाज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? हम अगेन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में क्या होता है, अगर हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ड्रॉ करना है तो वहां पर हम क्या करेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी शो करना है तो आप कैसे शो करेंगे? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंगल सेम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे? डी ग्राफ बोला है, डी ग्राफ का मतलब एक एक्सिस क्या होगा? डी, और एक एक्सिस क्या होगा? टी, राइट। और यहाँ पर हमें वेलोसिटी चाहिए, मैंने आपको बोला था वेलोसिटी के फॉर्मूला में डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है। हम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? डी ग्राफ से बाय इट्स स्लोप। स्लोप के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जा रहा है ये भी इंक्रीज होते जाएगा कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कोई भी यूनिफॉर्म पूछा हो आपसे, ड्रॉ कैसा होता है? ऐसा होता है। लेकिन अभी आप बोलोगे यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमने ऐसे लाइन ड्रॉ करी, लेकिन यहाँ पर हम ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? यूनिफॉर्म बोला था ना, बिकॉज ये डी ग्राफ नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वहां पर स्लोप से निकल रहा था वेलोसिटी, यहाँ पे खुद ही हमें वीटी के अंदर शो करना है, इसलिए अगर आपने यहाँ पे ऐसे बना दिया तो ये एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया क्यों हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, तब भी हमने, क्योंकि वीटी ग्राफ था और वीटी ग्राफ के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट होता है, इसीलिए हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया है। जैसे अगर इसके अंदर हमें कांस्टेंट डिस्टेंस दिखाना होता तो हम लाइन ऐसे बनाते, राइट, डिस्टेंस कांस्टेंट के लिए।
Okay, so now let's draw it for the second case. This is, say, uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम बना रहे हैं वीटी ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वीटी ग्राफ इसकी स्लोप से निकलेगा स्ट्रेट लाइन, बट कैसे होगी, डायगोनल की तरह बनेगा। सो दिस इज, से सपोज दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, सो इट वुड बी लाइक दिस, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। सो यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, सो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, वी कैन नोट इट डाउन फ्रॉम स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, we can find acceleration. Okay, I hope it is clear. Is it clear? ये कौन सा, यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा हो रहा होगा, वेलोसिटी क्या होते जा रही है एवरी टाइम, इंक्रीज हो रही है, राइट। अगर यहाँ पर है सपोज, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट हम चेक करें, यहाँ पर वेलोसिटी इतना था, यहाँ पर वेलोसिटी और ज्यादा आ रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है। इस कोऑर्डिनेट पे हम चेक करें तो वेलोसिटी और ज्यादा आ गया यहाँ पे, राइट। सो ये कौन से एक्सेलरेशन के लिए है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए है। और वी कैन से व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, स्पीड अप हो रही है ऑब्जेक्ट, तब हो रहा होगा ये वाला ग्राफ। लेट्स टेक अनदर केस। सेकंड केस है हमारा, इसी तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन सपोज आप ऑलरेडी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप चला रहे हैं, राइट, और नाउ यू आर अप्लाइंग ब्रेक, आपने ब्रेक अप्लाई किए, ठीक है, ब्रेक अप्लाई किए हैं। सो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आपकी स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फाइनली ब्रेक अप्लाई करने के बाद में गाड़ी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। स्टॉप हो जाती है तो वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड में। सो फॉर दिस केस, अगर हमारा जो स्टार्टिंग में हमारी ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वेलोसिटी एक्सिस है हमारा, दिस इज टाइम एक्सिस। सो दैट मीन्स हमारा टाइम पीरियड 0 टाइम पर जब हमने ऑब्जेक्ट को देखा, सपोज हमने बाहर देखा, और जब जैसे ही हमने बाहर देखा, एक कार जो थी दैट वाज इन मूविंग पोजीशन, और वो कौन सी स्पीड से मूव कर रही थी, वेलोसिटी से 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। थोड़ी देर बाद में उसने हमारी क्लास के आगे आके उसने ब्रेक अप्लाई किया, नाउ इट इज एट रेस्ट। तो अब उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 आफ्टर टाइम इंटरवल से 5 सेकंड बाद में उसने अप्लाई किया है ब्रेक। सो सपोज यहाँ पे 5 सेकंड बाद में, सपोज 5 नहीं, हम 15 ले लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं इंटरवल। सपोज यहाँ पे 5 सेकंड था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15 सेकंड था, राइट। तो क्या होगा, जब टाइम 0 था उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, जब हमने देखा था तब वो 40 मीटर पर सेकंड था। सो दैट मीन्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 40,0, ये यहाँ पर आएगा, सॉरी हमने 40 कहाँ शो किया है, इस पर थोड़ा सा नीचे किया है, राइट, यहाँ पर 40 था। तो दैट मीन्स जब टाइम 0 है, कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, वेलोसिटी एक्सिस पे आएगा। अभी थोड़ी देर बाद में वो क्या हो रही है, टाइम पीरियड 15 पे स्टॉप हो गई, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और टाइम पीरियड 15 हो गया। तो ये वेलोसिटी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रही है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पर भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले 40 थी अब 0 हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड डिक्रीजिंग। Harpreet and Anjali, are you understanding this? Yes, ma'am. Okay. So यहाँ पर शो हो रहा है हमारा जो स्पीड है वो क्या हो गई है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हुई है। यहाँ पर भी स्पीड डिक्रीज यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं है कि बीच में उसने 30 मीटर पर सेकंड स्पीड पे चलाया और फिर ऐसे तरीके से, नहीं,
यूनिफॉर्मली धीरे धीरे डिक्रीज हुई है। सो यहाँ हमारा ये जो केस हो जाएगा नेगेटिव एक्सेलरेशन है। वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन मतलब भी सेम है, और वी कैन ऑल्सो से रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन का डायग्राम हो जाएगा। इज इट क्लियर? स्पीड इज डिक्रीजिंग। ओके, वी विल बी डिस्कसिंग फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। I will be giving you few more questions in homework. LDA2 हमारा already कौन से टॉपिक पर था? Speed and velocity है, ठीक है। Next LDA3 would be based on average speed and velocity. Okay, try to complete LDA3 also, ठीक है। जितने questions आपसे हो पाते हैं it's better. अगर नहीं होते हैं just mark down the doubts. I think बहुत easy questions है, बहुत ज़्यादा hard नहीं है। आप अभी हमारा actually topic चल रहा है, आप इसको cover up कर लेंगे, easily आपसे solve हो जाएंगे। और doubt आएंगे तो हम by the next class हम उसको क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इट वुड बी मोर प्रॉफिटेबल फॉर यू। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में जब तक हमारा ये ग्राफ कंप्लीट होगा फिर हम एवरेज एक्सेलरेशन वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? सो नोट डाउन योर होमवर्क इज LDA3 ऑल क्वेश्चंस। ओके, दोज हु आर नॉट हैविंग बुक्स प्लीज मेंशन मी, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं टू आस्क फॉर द क्वेश्चंस, और यू कैन आस्क योर फ्रेंड आल्सो टू शेयर द पिक्चर। Bye, ma'am. बाय, हैव अ गुड डे। Tomorrow's class will be of physics or What your chemistry. voice is cracking, Mahatri. Mama, I'm asking that tomorrow's class will be of physics or chemistry. What? Can you write? Your voice is breaking, Anjali. Okay, or you can ping me and ask on WhatsApp also. Right now I am not able to hear you. I am also having a next class. Okay. So this is all for today. Have a nice day, students. Please make sure that you are completing the homework. ठीक है? Otherwise आपको समझ में